Hello students, in today's lecture we are going to discuss another important application of MS Excel, and that is what if analysis. So for that we have to go to data, and in data tools we have what if analysis. Here we have three kinds of techniques for what if analysis: scenario manager, goal seek, and data table. So in this lecture we are going to discuss goal seek, right? So how this goal seek can be used in business or even as a student, how you can use it. So I'll take a very simple example for making you understand the goal seek. Say you have got 4 assignments. Teacher marks you on the average basis of the marks that you achieve in the 4 different assignments. 3 assignments already have been taken, in which you have scored these marks: 56, 76 and 70 out of 100 marks each. Say these are the marks. Now the 4th assignment is due, and you're going to be marked on the basis of the average of the 4 assignments, right? If this is the current situation. Now how the situation of goal seek arises. Suppose what is your goal? आपका गोल है कि मेरे को जो 80 ऑन एन एवरेज मेरे को 80 स्कोर करना है या मेरे को 75 स्कोर करना है. दिस इज़ योर गोल. यू आर सीकिंग योर गोल एंड अकॉर्डिंगली you want to know how much marks should I score in the 4th assignment so that I achieve my goal. So ये जो missing है, जैसे हम x लेकर मैथ्स में करते हैं, उसी तरह से what should be the marks in the 4th assignment so that I achieve my goal of getting an average of 80 or 75 or 78, whatever, right? So this simple problem we can solve through goal seek. यहाँ से सपोज हम एक क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं. दीज 3 आर गिवन टू यू एंड you want to know the value of this 4 so that the average you have the goal. So let's first put a formula. How do we get this average? It will be dependent upon the 4 assignment marks. So it is equal to, I'll put the formula of average. See, here we get equal to average, and I select these 4 even though one is missing, but हम अभी formula लगा देते हैं. Whatever will be the value here, accordingly my average will be determined. Right now 3 जो assignments हैं उनकी average है 67.33. Suppose I want an average. अब यहाँ पर ऐसे ही hit and trial से अगर हम करें कि अगर मेरे 75 मार्क्स इसमें आ जाएं तो मेरी एवरेज कितनी होगी. सो आप अपने आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ था, तो इट सेज कि 69.25 आपकी एवरेज होगी अगर आपने 75 स्कोर किया इसमें. अगर मैंने कुछ और स्कोर किया तो इफ़ आई वांट एग्जैक्ट मेरी 75% आ जाए, उसके लिए ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आई वांट टू डिटरमाइन दैट. सो अगर मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी भी हुई है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. नाउ दिस आई कैन डू थ्रू अ गोल सीक. सो वी विल गो टू डेटा टैब. डेटा टैब में डेटा टूल्स, इन डेटा टूल्स वी हैव व्हाट इफ एनालिसिस. In what if analysis we can go to goal seek. We are seeking a goal. So goal seek में आपको 3 चीज़ें, it is asking for 3 things. Set cell, then next is to value, third is by changing cell. Now let's understand the set cell. हमें कौन से set cell की वैल्यू सेट करनी है, क्या गोल है हमारा, क्या सेट करना है गोल. सो कौन सा सेल में हम गोल डिफाइन कर रहे हैं. सो हम गोल अपना डिफाइन कर रहे हैं एवरेज वाले सेल में, इन दिस B9, राइट. दिस इज अवर गोल. वी हैव टू सेट दिस पर्टिकुलर सेल टू अ पर्टिकुलर वैल्यू. सो सेट सेल में हमने सेल सिलेक्ट किया, कौन से सेल को हमें सेट करना है टू अ पर्टिकुलर गोल. नेक्स्ट इज टू वैल्यू. क्या वैल्यू आप सेट करना चाहते हैं अपने गोल की, उस पर्टिकुलर सेल की जो आपने अभी सिलेक्ट किया है, सेट किया है B9, उसकी क्या वैल्यू आप चाहते हैं, टू वैल्यू.
So here I can define my goal. Suppose I want 80%, बहुत हाई गोल रख लेते हैं, हमें 80% अगर चाहिए, 80 एवरेज चाहिए, 80 मार्क्स एवरेज चाहिए, तो मेरे को फोर्थ असाइनमेंट में कितने मार्क्स चाहिए होंगे? तो टू वैल्यू 80, हमने B9 की सेट कर दी 80. बाय चेंजिंग सेल यू हैव टू टेल द गोल सीक कि कौन सा वेरिएबल सेल है, किस सेल की वैल्यू को चेंज कर करके हिट एंड ट्रायल करके देन यू शुड अराइव एट 80 एवरेज. सो बाय चेंजिंग सेल दिस इज द वेरिएबल राइट नाउ. इसे चेंज करके बताओ कि इसमें कितने होने चाहिए वैल्यू फोर्थ असाइनमेंट में, सो दैट आई गेट 80 एवरेज. अब हम ओके कर देते हैं. सो गोल सीक हैज़ कम विद द सोल्यूशन, और देखिए वो सोल्यूशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर दिया उसने. एवरेज आपकी 80 कर दी, और 80 एवरेज के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए फोर्थ असाइनमेंट में, ये है. उसको नहीं पता कि मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं, उसने कहा कि 118 मार्क्स आपको चाहिए फोर्थ असाइनमेंट में इफ़ यू वांट एन एवरेज ऑफ 80. ये तो अनअचीवेबल हो गया. दैट मीन्स 80 एवरेज तो अब आ ही नहीं सकती आपकी, ये अनअचीवेबल है बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे. हम दोबारा से एक गोल सीक कर देते हैं. बहुत हाई गोल हमने सेट कर लिया था, तो देखिए दोबारा से सेट सेल. कौन से सेल? आई वॉन्ट टू सेट दिस सेल टू अ वैल्यू. थोड़ा सा कम कर देते हैं अपने गोल को, रियलिस्टिक सा. सो आई वॉन्ट 75 ऑन एन एवरेज मार्क्स, क्योंकि 3 तो आ चुके हैं, चौथे में कितना कर लेंगे आप. सो टू अ वैल्यू ऑफ 75, एंड बाय चेंजिंग सेल आई वॉन्ट टू चेंज दिस इज द वेरिएबल सेल फोर्थ असाइनमेंट के मार्क्स. सो नाउ लेट्स सी, हमने गोल कर दिया 75. सो सोल्यूशन आ गया यहाँ पे एवरेज 75. यू शुड स्कोर 98 मार्क्स in your fourth assignment so that the average of these 4 assignments will be exactly 75, will be exactly what is your goal. So this is how the goal seek operates. आपका एक गोल डिफाइंड है, आपको सम गिवन वैल्यूज है, और कोई एक वेरिएबल सेल है जिसको चेंज कर करके आप अपना डिफाइंड गोल अचीव कर सकते हैं. सो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी. हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए, गोल सीक के लिए. एक बिजनेस कैसे फेस करता है इस तरह की सिचुएशन, और वो कैसे गोल सीक का यूज कर सकता है. सी, वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइकिल मैन्युफैक्चरर. सो द सिचुएशन इज लाइक दिस. देयर इज अ साइकिल मैन्युफैक्चरर हु सेल्स बोथ इन द रिटेल मार्केट एंड इन द होलसेल मार्केट. ठीक है. सो उसके पास मार्केट्स अवेलेबल है, रिटेल मार्केट एंड होलसेल मार्केट. अब वो उसके पास प्रॉब्लम ये है कि वो कितना होलसेल में सेल करे और कितना रिटेल में सेल करे. होलसेल के सेलिंग प्राइसेस हैं 1100, और रिटेल के सेलिंग प्राइसेस हैं उससे थोड़े से ज़्यादा, दैट इज़ 1200 पर साइकिल. द कॉस्ट साइकिल मैन्युफैक्चर करने की उसको कॉस्ट आती है 800. दिस इज द कॉस्ट, चाहे वो रिटेल में सेल करे फिर उसे या होलसेल में सेल करे. कॉस्ट प्राइस इज 800 पर साइकिल, सेलिंग प्राइस इज 1200 एंड 1100. उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है 2,50,000. राइट. वो साइकिल्स कितनी मैन्युफैक्चर करता है? 2000. राइट. दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. 2000 साइकिल प्रोड्यूस करता है. सेलिंग प्राइस दोनों मार्केट्स का, कॉस्ट प्राइस उसका क्या है per unit variable cost, and the fixed cost overall is 2,50,000. Now if he is selling, suppose अभी given है कि वो 40% अपने जो साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड है उनका 40% वो अभी रिटेल में सेल करता है. परसेंटेज सोल्ड इन रिटेल इज 0.4, दैट इज 40%. अगर वो 40% सेल करता है तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना आता है, हम पहले तो ये निकाल लेते हैं और उसके बाद हम गोल सीक स्टार्ट करेंगे. सो गिवन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन यूजिंग फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कितनी साइकिल्स वो एक्चुअली सेल करता है इन द रिटेल एंड होलसेल. सो 40% रिटेल में करता है, दैट मीन्स 40% ऑफ 2000. सो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं. हम हमेशा रेफरेंसेस या फॉर्मूलाज के थ्रू काम करेंगे सो दैट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए. हम अगर एक सेल चेंज करें तो ऑटोमेटिकली उससे सारे हमारे रिलेटेड सेल्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएं. सो इक्वल टू, हम फॉर्मूला लगाते हैं 40% ऑफ
साइकिल्स प्रोड्यूस्ड। सो 800 आ गया। यहाँ पे अगर मैं 40 को बाद में 60 भी कर दूँ तो भी ये वैल्यू अपने आप अपडेट हो जाएगी। साइकिल्स प्रोड्यूस्ड एंड परसेंटेज इन रिटेल, इससे हमारा आ गया रिटेल में एक्चुअल नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी हमने सेल की। सिमिलरली होलसेल में कितने की, उसके लिए भी हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस दिस। अगर 40% रिटेल में कर रहा है तो 60% यानी कि बाकी का बचा हुआ होलसेल में कर रहा होगा, तो 1 माइनस दिस, क्योंकि पॉइंट्स में है, एंड मल्टीप्लाई बाय 2000, सो 1200। राइट नाउ 2000 में से 40% दैट इज 800 साइकिल्स वो रिटेल में एंड बाकी का 1200 वो होलसेल में सेल कर रहा है। नाउ दिस इज द कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द प्रॉफिट पर यूनिट? प्रॉफिट पर यूनिट निकाल रहे हैं अभी हम प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सिंपल हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, दिस and similarly if I drag it, so 1100 minus 800, ये है हमारा प्रॉफिट पर यूनिट। ना प्रॉफिट पर यूनिट इतना है, नंबर ऑफ साइकिल्स इतना है, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा रिटेल मार्केट में, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा होलसेल में। उस टोटल प्रॉफिट में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा एक्चुअल टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 800 मल्टीप्लाई बाय 400 प्लस 1200 मल्टीप्लाई बाय 300 माइनस 2,50,000. This is what we have to do to find out the total profit. For this, we'll use a formula of sum product. So, यहाँ पे आ गया सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट के लिए आपको अरे 1, अरे 2, अरे 3 इस तरह से क्या करता है सम प्रोडक्ट, वो पहले प्रोडक्ट फाइंड करता है और फिर उनका सम करता है। सो द नेम सम प्रोडक्ट। सो पहले वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट फाइंड करेगा फिर उनका सम करेगा। सो हम यहाँ पे अरे की तरह से देते हैं फॉर्मूला कि वन अरे इज दिस and the other array is this. बंद कर दिया हमने फॉर्मूला, दो अरेज दिया तो ये क्या करेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम्स को प्रोडक्ट करेगा और फिर उनको सम करेगा। तो 800 को 400 के साथ प्रोडक्ट फाइंड आउट करेगा एंड देन ऐड करेगा 1200 इंटू 300। दिस इज वॉट वी वॉन्ट, नंबर ऑफ साइकिल्स मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट पर साइकिल प्लस अगेन नंबर ऑफ साइकिल्स इन होलसेल इंटू प्रोडक्ट पर यूनिट इन होलसेल। सो फॉर दिस वी यूज द सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। इससे हमारा ये प्रोडक्ट आ जाएगा, माइनस करेंगे इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट। सो आई एम सिलेक्टिंग दिस सेल, इससे हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। राइट, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट। Now it is showing some error, found an error. हम ब्रैकेट शायद लगाना भूल गए थे तो इसने ब्रैकेट लगा दिया है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको, करेक्शन को। सो नाउ द टोटल प्रॉफिट एट प्रेजेंट इज 4,30,000। राइट, ये प्रेजेंट सिचुएशन है जब वो 40% रिटेल में सेल कर रहा है, तो एक्चुअली वो इतनी साइकिल्स होलसेल और रिटेल में कर रहा है। दिस इज द प्रॉफिट पर यूनिट इन बोथ द मार्केट्स। सो टोटल प्रॉफिट एंड देन द नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर डिडक्टिंग द फिक्स्ड कॉस्ट, उसका प्रॉफिट बचा है 4,30,000। दिस इज द सिचुएशन एट प्रेजेंट। नाउ हाउ टू यूज द गोल सीक हेयर। सपोज द बिजनेसमैन सेट्स अ गोल दैट ही वॉन्ट्स टू अर्न एन एग्जैक्ट प्रॉफिट ऑफ 5 lakh. He wants a profit of this, total profit of 5 lakh. So if this is the goal, how much extra effort should he make to sell in the retail so that he achieves a higher profit of rupees 5 lakh? उसको ये रिटेल की ये जो सेलिंग ये कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड सेलिंग प्राइस इफ दे रिमेन द सेम, उसके पास जो वेरिएबल इन हैंड है वो है ही कैन चेंज द परसेंटेज of the cycle sold in retail and wholesale. This is the variable with him right now. He cannot change the cost, he cannot change the selling price in the short run. Suppose what he can change is the number of cycles which he sells in retail or wholesale. Right?
सो इफ दिस इज द वेरिएबल विद हिम, इसको क्या चेंजेस लाए वो सो दैट उसका प्रॉफिट जो है ये 5 लाख हो जाए. दिस इज द सिचुएशन एट प्रेजेंट. ये उसके पास प्रॉब्लम है. सो वो हिट एंड ट्रायल करे कि यहाँ पे 4 की जगह अगर मैं 45% सेल करूँ तो कितना होगा, या 47% सेल करूँ रिटेल में तो कितना होगा. सो इंस्टेड ही कैन यूज द गोल सीक टू गेट हिज आंसर विद इन फ्यू सेकेंड्स. हाउ? इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ इस सिचुएशन को, सो दैट आप ओरिजिनल को भी देख पाए. यहां पर कर लेते हैं कॉपी इसे. राइट. सो ये अब हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं. यहां पर हम गोल सीक लगाते हैं. ये हम ओरिजिनल सिचुएशन ऐसे ही रहने देते हैं इसको. राइट. सो वी आर गोइंग टू डेटा में व्हाट इफ एनालिसिस, एंड दैट वी आर गोइंग टू गोल सीक. गोल सीक इज आस्किंग यू, देखिए इस सेल को हम इधर मूव कर देते हैं, इस विंडो को. गोल सीक इज आस्किंग यू टू सेट द सेल. सेट सेल, हम कौन से सेल को सेट करते हैं? जो हमारा टारगेट होता है. सो टारगेट है हमारा टोटल प्रॉफिट. सो सेट सेल दिस, हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमें इस सेल को सेट करना है. टू व्हाट वैल्यू वी वांट टू सेट दिस सेल टू? वी वांट अ टारगेट 5 लाख. तो I11 को, इस पर्टिकुलर सेल को 5 लाख सेट करना है हमें बाय चेंजिंग सेल. विच इज़ द वेरिएबल सेल? किसको आपको चेंज कर करके, हिट एंड ट्रायल करके, एंड देन यू वांट टू अचीव अ 5 लाख प्रॉफिट. सो हेयर ये है हमारा वेरिएबल कि कितना परसेंटेज जो है मैं रिटेल में सेल करती हूँ. मेरे को इसको इंक्रीज करना चाहिए या इसको डिक्रीज करना चाहिए थ्रू माई मार्केटिंग एफर्ट्स और वॉट एवर. ठीक है, मैं कितना साइकिल सेल करूँ डिटेल में, या दैट इज द वेरिएबल. तो बाय चेंजिंग दिस परसेंटेज आई वॉन्ट टू अचीव अ टारगेट ऑफ 5 लाख ऑफ टोटल प्रॉफिट. मैंने किया ओके. सो देखिए यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली इसे 5 लाख चेंज कर दिया. एंड फॉर अचीविंग दैट 5 लाख यू वुड नीड 75% ऑफ योर टोटल साइकिल्स टू बी सोल्ड इन रिटेल. आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं इसने क्या किया, और इसने सब जगह चेंजेस कर दिए. जब ये 75% हुआ तो ऑटोमेटिकली ये चेंजेस हो गए आपके कि टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स आपको कितनी सेल करनी होंगी. रिटेल में 1500 और होलसेल में 500. इफ दिस इज सेम, यू आर नॉट चेंजिंग द टोटल साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड, तो नाउ यू हैव टू सेल मोर इन टू द रिटेल मार्केट, बिकॉज रिटेल मार्केट का प्रॉफिट पर यूनिट ज़्यादा है. ठीक है, सो वो प्रॉफिट पर यूनिट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुआ है. That is the same. Just by changing the percentage sold in retail, number of cycles change हो गया. number of cycles change हुआ तो number of cycles multiply by profit, जो हमारा total profit आया होगा, हमने जो sum product का formula लगाया था वो change हुआ होगा, और इसीलिए हमारा ये total profit 5 लाख आ गया है. So इसने ये फटाफट within a second कर लिया combinations की किससे हम exactly 5 लाख का profit earn कर सकते हैं. So we need 75% to be sold in the retail. We have got our answer. आप और कुछ भी गोल सी कर सकते हैं कि अगर मेरे को ये 6 लाख चाहिए हो तो मैं क्या करूँ. So you can get your answers within a few seconds by using this goal seek. You can use this goal seek in a multiple number of situations in the business world or as a student, or anyone can use this for different purpose. Right? So I hope this is clear to you. An important application, goal seek. So now in the next upcoming lectures, we will discuss the two other techniques of what if analysis, data table and scenario manager. Right? Thank you.